Hello students, welcome back to online study again. आज हम today we are studying about class 6 standard math. Starting with know our number. Previous class we have also studied about numbers, different types of number like that. Whole number, rational number, natural number, even, odd, different types of number we also studied about previous class. हमने लास्ट क्लास में जाने थे इन सभी नंबर के बारे में. Whole number start with 0, rational number start with in this form of fraction, natural number start with 1, 2, 3. So that is we are also know about number, different types of number. So today we are studying about numerization, means नंबर कन्वर्ट इनटू वर्ड. नंबर को वर्ड में लिखना है, वो क्या कहलाता है? न्यूमराइजेशन. जिसमें कि हमने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इसी में से ये है कि आप मैथ में जानते हैं कि वर्ड राइट इन वर्ड और राइट इन नंबर्स. सो दैट आज हम स्टडी करते हैं दो और नंबर जिसमें हमारे पास मटेरियल है न्यूमराइजेशन. नंबर न्यूमराइजेशन जिसमें हम किसी भी वर्ड को इन दिस वर्ड में लिख सकते हैं. लाइक दैट 100, everyone know that. Like that 756. This type of number we also taught read about previous class 5, class 4. So that in this class 6 we also study about different types of number system. So that means different types of number system means two types of number system. Like that, first is Indian system. The second is इंटरनेशनल सिस्टम. डिफरेंस वर्ड इज स्टार्ट हम करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. So this is called Indian system. Like that we are putting number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So we are writing this form 98 crore 76 lakh 54,321. Everyone knows about this. Next, international system. But international system also copyright of this, but something changed. What is changed? Look at some ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 100,000. That is different. 10,000 after lakh, but in this form after 10,000, 100,000. After million, 10 million, then 100 million. In this form we are studying about 3 point, also 3 point, then also 3 point. But in this Indian system 3, 2 pair, 2 pair, another 2 pair. But in this international system 3 pair, 3 pair, all 3 pair. That is difference about Indian system and international system. We all know about that in this written form
In this form we are write that 19 8 crore 76 lakh. Everyone knows that I am not writing here. Clear? Then after that, in this form, same number I put it 9 8 7 6 5 4 3 2 1. In this form, in this read that 900 million 987 million. In this form we are reading 987 million 654,321. That is different. In this form we are saying that million, in this form we are saying that lakh and crore. यही आपको डिफरेंस समझना है। इन दिस फॉर्म में हम करोड़ और लाख में डिजिट काउंट करते हैं, इन दिस फॉर्म में हम 100 के बाद 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। यही आपको इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडस सिस्टम आपको डिफरेंस समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस रीडिंग का है, राइटिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। राइटिंग में इसमें 3+2+2 पेयर होते हैं, इसमें ऑल पेयर आर 3 डिजिट पेयर। तो हम इनको लिखने का पैटर्न में समझते हैं किस डिजिट को किस प्रकार से रिटर्न बेस कर सकते हैं। तो हम क्योंकि इन दिस क्लास 6 everyone study about numbers and different types of number, write is about writing number, ये आपके अक्सर आते रहेंगे, सो दैट आप इनको अंडरस्टैंड कर ले, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट जैसे मैं डिजिट लिखता हूं 78 6 5 4 then 2। अब इन दिस में आपके कभी भी क्वेश्चन बनता है राइट इन ओनली कॉमा फॉर्म इन दिस इंडियन सिस्टम एंड कॉमा फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो कॉमा में कैसे लिखेंगे? अगर इन इंडियन लिखें इंडियन सिस्टम 3 2 और 1 आता है, तो यहां पे क्या लगे 7 86 542। तो डेटा रीडेबल 7,86,542। क्लियर? इन दिस इंटरनेशनल सिस्टम 3 then 3। In this one we are reading about 786,000, understand that 786,542। that is different 1 2 3 3 and 3। this is different only for analysis with comma। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बस कॉमा में 2 के पेयर बनेंगे, इसमें हमेशा 3 के पेयर आपको रीडिंग कर जाएगा। इनको आपको लिखने का फॉर्म क्या होगा? इसको अगर रिटन फॉर्म में लिखा है, इन वर्ड लिखे हैं आप लोग, तो वर्ड में क्या आएगा 7 लाख 80,000 86 6,000 542। clear? 7,86,542 in this India system। and again in this word में इसको लिखेंगे तो क्या होगा 786 786,000। यहाँ पे आपको काउंट 1000 लिखना होगा, ठीक है? 786,000 542। सेम रिपीट 542। क्लियर? यही आपको डिफरेंस समझना है कि इनको रिटन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनको कॉमास करके कैसे लिखते हैं, इनको किस प्रकार से रिटन राइट किया जाता है। यही क्लास 6 का स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर का बेस है, जिसमें आपको इन दिस फॉर्म में आपको समझना होता है। अगर एक अनदर एग्जाम लें, एग्जांपल लाइक नेक्स्ट, तो
अगर हम ये नंबर है इमेजिन, इसको हम पहले क्या लिखेंगे, इन कॉमा में लिखे हम, कॉमा इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, क्या आएगा 3 2 2 1। तो देन क्या लिखेंगे 8 96 54 032। क्लियर, हमने रिसर्व कर लिया कॉमा में, हम रीडिंग कैसे करेंगे 8 करोड़ 96 लाख 54,032, क्योंकि इसमें कोई डिजिट है ही नहीं तो इस जीरो को हम काउंट करेंगे तो क्या रीडिंग करना ओनली 32। नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉमा क्या है 332, यहाँ पे आएगा 89 654 032। अब यहाँ पे इसको रीडिंग करेंगे कितना है 89,654,032। अब आगे डिफरेंस समझ में, रीडिंग वापस इन वर्ड लिखिए, इसको एक्सप्लेन करके तो 8 करोड़ 54,032। क्लियर, 8 करोड़ 96 लाख 54,032। again we write again international form, that is means 89 but we are not writing crore, we are writing again million. Clear, 89 million 654 654,000 again 32। यही क्लास 6 के जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें लगभग आपको रिटन फॉर्म में वर्ड इन नंबर या वो लिखने होते हैं, और इसलिए आप बेसिक समझे तो वापस उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर ले इसको बेसिक्स में और क्या क्या आप इसमें समझ सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं, क्योंकि नंबर बेसिक इसमें आप जितने एग्जांपल है जितने एग्जांपल बनाते जाए वो आप बना सकते हैं। बट इन दिस फॉर्म आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिस्टम बस बिलियन में होता है, बट अगर इंडियन एंशिएंट सिस्टम की बात करें तो लगभग हम इसमें कितने 9 डिजिट होते हैं, एवरीवन नो दैट। बट अगर इंडियन सिस्टम एंशिएंट सिस्टम फॉलो किया जाए तो उसमें लगभग हम 19 डिजिट तक को भी हम काउंट करना इंडियन एंशिएंट टाइम में सीख चुके हैं। बट अभी तक आपको वो कोर्स से भी स्टार्ट नहीं किया गया है, इसलिए आपको पता होगा नहीं, जब आपको होगा बाद में तो उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे 19 डिजिट तक की संख्या को रीडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें आप 9 डिजिट तक केवल करोड़ तक पहुंचे। अब अगर आपके पास सपोज करो 12 डिजिट है तो आप सबके रीड करेंगे तो ये आपके लिए कुछ होगा, और आपको किसी को आता हो तो आप उसमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि 12 डिजिट नंबर हो आप उसको कैसे रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो वापस एग्जांपल अब सोचते हैं फिर सिंपल एक्शन। अब वो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा मैंने 1000 में, अब 1000 में कितना 100 होते हैं, अगर सपोज इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए 1000 है, देखिए मैंने अब यहाँ पे कितने जीरो है कितने 100 है, अगर इसको 10 इंटू 100 करें तब क्या आएगा 1000 आएगा। यहाँ पे आपको क्या शो करना है 100 शो करना है, कितने 10 की 10, तो आपको 1000 में 10 100 होते हैं। उसी प्रकार वापस नया एग्जांपल समझे, ये आपको सीखना होगा लर्निंग प्रोसेस में कि 1000 में 100 कन्वर्ट होता है, 100 को 1000 में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि आप 1000 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 लाख, 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो फर्स्ट इसको रीडिंग कीजिए 1000 में कितना होते हैं 1 लाख कितने दूर आएंगे, यही होता है 1 लाख।
1000, 10,000 एंड लाख। अब इसमें 1000 कितने होंगे, 1000 कितने जीरो चाहिए, 4, यहाँ बात 1000 हो गए। अब इस 1000 किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 लाख आ जाए, जस्ट रिमेंबर 1000 into 100, अगर 100 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तब आपके पास कितना वैल्यू आएगी, 1 लाख। इसको आप एग्जांपल जनरल मनी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी 1000 के नोट नहीं आ रहे, अगर सपोज करें यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2000, तो आपके पास 2000 के कितने नोट ऐड किए जाए कि आपके पास 1 लाख की मनी हो जाए, बताइए। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर सपोज के मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 2000 लिख लिया, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, आपको मल्टीप्लाई करना होगा 50 से, आई समझ में, क्योंकि आपको इस डिजिट को उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पे कितनी डिजिट मिल जाए, लाख मिल जाएगी। या फिर आपको काउंट करना है तो आप इस 2000 को क्या कर लो, इसमें डिवाइड दे सकते हो। लास्ट एग्जांपल डिवाइड करें 30 क्लियर। यानी कि आपको ये कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना, वैल्यू आपको आनी चाहिए कि आप किसी भी डिजिट को किस प्रकार से 1000 लाख को 1000 में कर सकते हैं, 1000 को लाख में नहीं कर सकते। डिजिट जो स्मॉल होती है वो बिग नहीं बन सकती, बट बिग डिजिट को हम स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही आपके मैथ का फर्स्ट चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज भी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। टुडेज क्लास फॉर, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।